والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ الذی کسا اہل الحدیث رداء الشرف والتعظیم وعلا ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام على امام اہل الحدیث سید الابرار وصحابته المہدیین الاخیار وآلہ الطیبین الاطہار کلہم اہل الحدیث من الابرار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اختصار کے ساتھ خواہش میری بھی تھی، سفر کی مجبوری ہے، میرے چھوٹے بھائی میرے عزیز مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب تشریف فرما ہیں، ساتھیوں کی خواہش تھی وہ آپ سے ہم کلام ہوتے، اور یقیناً اپنی بات کو اختصار کے ساتھ کرتے ہی ان سے درخواست کرنے والا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی اطلاع دیتے ہیں ایک شخص شام سے آیا، 1 مہینے سے مسلسل سفر کر کے رات دن سفر اونٹنی پر بیٹھا ہوا 80 سالہ بزرگ گرمی کی وجہ سے رنگ سیاہ پڑ چکا، مسجد نبوی میں حاضری دی، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سے ملاقات کی خواہش ہے۔ ملاقات ہوئی اور ملاقات ہوتے ہی ایک درخواست پیش کی کہ اتنا لمبا سفر کرنے کا اور کوئی مقصد نہیں، صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس اکثر تشریف فرما ہوتے تھے، مجھے سکھائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے آپ نے التحیات کیسے سیکھی، کیا کلمات سیکھے، کیا الفاظ سیکھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، زارو کتار رونا شروع کر دیا، داڑھی بھیگ گئی، بلند آواز سے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ نے اس شخص کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کہا اس وجہ سے یہ شخص علم سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے طریقے کو سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے کو ٹچ کر جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ سرور کونین نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث کی برکت ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما، ان نوجوانوں کو بزرگوں کو مجمع کے اندر تشریف فرما، نوجوانوں کو بزرگوں کو آپ دیکھتے ہیں عمر زیادہ ہے تب بھی، کم ہے تب بھی، اگر ان کے چہروں پہ رونقیں ہیں، اور آقا علیہ السلام کی حدیث عارضی طور پر نہیں،
मुस्तकिल होती है। कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके चेहरे को दुनिया और आखिरत में तरोताजा रखेगा जो मेरी हदीस को सुन तक लोगों तक पहुंचा देगा। हजरात, रोए जमीन पर अपनी दावत, अपनी किताब, अपना नमूना, अपना माटो वो लोग पेश करते हैं जो बैठकों के अंदर बैठकर, ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके अपने मजहब की, मसलक की तशहीर की बात करते हैं। अहले हदीस कोई बात भी करता है मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह करता है। एक मिसाल आप नमाज की ले लीजिए। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अम्मनी जिब्रील, मेरी इमामत जिब्रील अमीन ने करवाई और कायनात के इमाम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी युसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इस तरह नमाज पढ़ना, रुकू इस तरह, सजदा इस तरह, रफ़ाए जान के बारे में, सूरत फातिहा के बारे में आका अलैहिस्सलाम के जानिसार साथी सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के अंदर एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। पूछा, इस तरह नमाज कब से पढ़ रहा है, कब से अदा कर रहा है? उसने कहा, मुन्ज़ु 40 सना, मैं 40 साल से ऐसे ही नमाज अदा कर रहा हूं। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान राज़दारे नबुव्वत हैं, इरशाद फरमाते हैं, वल्लाही मा सल्लैता मुन्ज़ु 40 सना, अल्लाह की कसम तूने 40 साल में एक भी नमाज अदा नहीं की है। और सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहा एक शख्स आया, आका अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक वुजू किया, आया मस्जिद के अंदर, आते ही 2 रक्तों की नियत करता है, 2 रक्तें सुन्नत के मुताबिक अदा कर लेता है। इन 2 रक्तों की बरकत की वजह से, नबी के तरीके पर अमल की बरकत की वजह से अल्लाह इसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। और सरवरे कौनैन ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना। बड़े आएंगे लाल किताबों के हवाले देने वाले, हरी किताबों के बाग दिखाने वाले। अहले हदीस इस दुनिया के अंदर वो लोग हैं जो कहते हैं हमारा ताल्लुक अल्लाह के कुरान से है, नबी के फरमान से है, मसलक और भी हैं, दावतें और भी हैं, मगर जब मसलक अहले हदीस की बात आएगी, मसलक अहले हदीस के बारे में, इस कुरान के बारे में, हदीस के बारे में हम यही कहेंगे कि मसलक अहले हदीस नाम है रिवायत का, दरायत का, सकाहत का, फकाहत का, वदीयत का, बदात का, जहानत का, फतानत का, इकबालियत का, बदाइयत का, आदमियत का, इंसानियत का, मुहब्बत का, उल्फत का, नुदरत का, हिदायत का, जुर्रत का, शुजाअत का, इशारत का, शहादत का, कि मसलक अहले हदीस नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की इस्मत का, किरदार सहाबा की अज़मत का, तबा ताबईन के चलन की सतवत का, आइम्मा इकराम के तफक्को की रिफत का, मुहद्दिसीन की अदालत की हिश्मत का, मुफस्सिरीन उला की आलियत का, फुक़हाए हक़ की रफ़ाइयत का, कि मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज का, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का, माताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु की पुकार का, मैं ये शाकी के रसूला की ललकार का, ला तत्तबिउ खुतवात शैतान के फरमान का, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही की निशान का, मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीना में इस्लाम मतीन का, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम में दीन का, ये हक के शैदाइयों का मसलक है, सिर्फ सच के धाइयों का मसलक है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं सरे बाजार हो तब भी, तख्ताएदार हो तब भी, शोलों पर
शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सरबकफ हर सिमत हर तरफ दुनिया वालों को बता देना है कि खौफ व अंदेशा हो, ताज़ीर व सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, और हाकिम रोज़े मुकाफात को राज़ी कर ले। हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। ये अहले हदीस ही तो हैं जो कहते हैं शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं, दूर रहो इन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। दुनियादारों को कहते हैं शिर्क के अड्डों पे सजदा न कर, रुकू न कर, मन्नत न मान, बल्कि दुनिया वालों को कहते हैं और जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर। और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करे गुलामी। शहरग से जो वरे है उस रब को तू भुलाना, सुन गैर के सवाली गैर को बुलाना। ख्वाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी का मोल लुटाया तौहीद का खजाना। वो फख्रे अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदे का बनाना, और सजदा रवा जो होता एक रब के मां सिवा को असहाब सजदा करते। महबूब किबरिया को बरचश्मे सब वली है, हाजत रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। ये नारा मैं लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। हजरात अहले हदीस का नारा आप सुनते हैं, अहले हदीस का ये उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, इस मदरसे के अंदर आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। हमारे मसाजिद के अंदर, मदारस के अंदर हर आवाज से यही आवाज निकलती है। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब मिलकर देंगे। हाजित रवा मुश्किल कुशा, हाथों का उठाकर जोर लगा के अपने जज्बे, अपने वलवलों को ताजा करते हुए बाद में आने वाले खुतबा के लिए रिहर्सल तैयारी करें, बैठकर जम करके सुने अल्लाह और उसके रसूल की बात को। जो हमारी दावत है, हमारी दावत नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की दावत है। नारा मेरा, बुलंद आवाज से जवाब मिलकर के देना सबका काम। हाजित रवा मुश्किल कुशा, हाथों को उठा के जोर लगा के भरपूर जज्बे के साथ मेरे नारे का जवाब दें। हाजित रवा मुश्किल कुशा, हाजित रवा मुश्किल कुशा, रहबरो रहनुमा मुस्तफा मुस्तफा, रहबरो रहनुमा। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। मसलक अहले हदीस की अजमत को सलाम, माल इज़्ज़ वल एहतराम। मेरे भाई कारी अब्दुल रशीद सल्फी साहिब, आपके रफ़ाक़ाए कराम, मेरे सारे इज्जत वाले एहतराम वाले साथी, अल्लाह का शुक्र है मस्जिद के अंदर अल्लाह ने आपकी ज़ियारत का मौका अता फरमाया। बड़ी तवज्जो के साथ मेरे छोटे भाई की गुफ्तगू सुनिए। छोटे हैं उम्र के अंदर, मगर इल्म के अंदर, गुफ्तगू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बड़ी इज्जत और अज़मत से नवाजा है। अल्लाह सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।